Good morning, dear students. So in last lecture, we have discussed about the components of ecosystem, and that we have started with productivity, and we have left up to the discussion on decomposition. I have briefed about what is actually decomposition, what is the importance of the decomposition in ecosystem, as well as I have summarized all the steps involved in the decomposition. Today we are going to discuss about the details of all the steps which are actually performing this entire process in the ecosystem. Total, there are 5 steps: fragmentation, leaching, catabolism, humification, and mineralization. So we are going to discuss about all this, starting with the first one, that is fragmentation. So dear students, what is fragmentation? So generally, as I yesterday said, it is the breakdown of the large molecules. So breakdown of detritus into smaller particles by detrivores. Okay, breakdown of detritus. Now what is detritus? Already we have discussed about what is detritus, all the remaining parts of the living organisms which are now converted dead. That means dead bodies, entire body parts, tissues, and fecal matter of the animals, that is considered as detritus. So here what actually happens in the process of fragmentation, this entire detritus, which is larger in size, it is going to be broken down in small pieces. Chopping process is going on. और ऐसा जो कर रहे हैं उन सभी organisms को, the organisms which are actually participating in the process of detritus breakdown is known as detrivores. And one such example of the detrivore is earthworm. So dear students, we know about herbivores, the organisms which are dependent on the plants for their food, that is herbivores. Carnivores, which are dependent on some other animals, that is carnivore. And these are detrivores, which are actually dependent on the detritus, that means the dead material, dead organic matter. उसको जो खाने वाले हैं for their energy requirements, for their growth, for their food and all this, those are known as detrivores. और ऐसा एक बहुत common सा example हमें पता है, that is earthworm. Okay, तो earthworm का काम ही ये है कि वो larger compounds को, या आप बोल सकते हैं detritus जो है उसको वो fragmentize करके देता है. Second such process, that is leaching. So leaching में क्या होता है? It is water soluble inorganic nutrients which go down into soil horizon and precipitate as unavailable salts. Okay, तो leaching process में क्या होता है? तो जो soluble inorganic nutrients जो हैं water soluble, okay, तो अगर ऐसे जो water soluble compounds अगर कोई है जो soil के ऊपर percolate कर रहे हैं, those compounds are going to be leached down underground and they are obviously going to be precipitates. और एक बार वो precipitate हो जाते हैं, then they will become unavailable. तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे सॉइल का पूरा जोन आपको दिखाया है, ये आप देख सकते हैं, ये ऊपर का जो एरिया है that is humus, acidic humus, और नीचे का जो ये पूरा जोन आपको दिख रहा है जो सॉल्ट के जैसे प्रेसिपिटेट्स भी आपको दिख रहे हैं वहां पे, इट इज लीच्ड जोन, मतलब वहां पे लीचिंग हुआ है. ये वर्टिकल सेक्शन आपको दिखाया गया है सॉइल का. ओके, तो इन दैट वे लीचिंग इज गोइंग ऑन. थर्ड, that is catabolism.
So obviously catabolism is nothing else but it is degradation of the detritus into simpler inorganic substances by bacteria and fungal enzymes. Okay, तो catabolism पता ही है कि enzyme करके दे सकते हैं, और कौन से enzymes? The enzymes which are involved in हाइड्रोलाइटिक एक्शंस. आप याद करिए 11th स्टैंडर्ड चैप्टर नंबर 9 क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स. तो उसमें OTH लील, उसमें H दैट इज हाइड्रोलेसिस. तो जितने भी हाइड्रोलेज एंजाइम्स हैं, ऑल दीज एंजाइम्स आर इन्वॉल्वड इन द कैटाबॉलिज्म. लेकिन उनका सोर्स क्या रहने वाला है? सोर्स ऑफ द एंजाइम विल बी बैक्टीरिया एंड फंगस. तो कौन कौन से एंजाइम हो सकते हैं कैटाबॉलिज्म में? तो यू आर aware about name of the enzymes, that is proteases, amylase, cellulase, lipase, nuclease. All these are the enzymes which are involved in the process of catabolism, जो large molecules को break down करके inorganic substances में बाद में convert करके देते हैं. तो जितने भी ऐसे enzymes हैं, and if their source is bacteria and fungus, they can help in the process of catabolism. फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग एंड कैटाबॉलिज्म अकर साइमल्टेनियसली. ये तीनों जो प्रोसेसेस हैं वो एक साथ चलते हैं. फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग एंड कैटाबॉलिज्म. ओके, ये तीनों प्रोसेस एक साथ परफॉर्म करते हैं. फोर्थ इज ह्यूमिफिकेशन. सो व्हाट इज ह्यूमिफिकेशन? सो एक्यूमुलेशन ऑफ ह्यूमस which is dark amorphous substance present in soil. Okay, humus accumulation in soil. Humus is resistant to the microbial action and so decomposes very slowly. अब देखो humus जो है, ये याद रखिए हमेशा, it is resistant to the microbial action. मतलब microbial action का मतलब क्या निकालेंगे आप? microbial action का मतलब ये है कि microbial enzymes are not able to degrade humus और resist करता है, तो बहुत slowly gradually ये decompose होने वाला है. Being colloidal in nature, it serves as reservoir of nutrients. तो colloidal है और colloidal होने की वजह से ये बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को accumulate करके रख सकता है, and that's why it is becoming as a good reservoir of the nutrients. Humification, humus, डार्क एमोर्फस सब्सटेंस. अब देखो केमिस्ट्री में भी आप पढ़ते हैं कि जो चीजें एमोर्फस होती है वो डिग्रेड, वो कंपाउंड इजीली डिग्रेड नहीं हो सकता है. जो क्रिस्टलाइन होता है वो कंपाउंड इजीली रिएक्ट कर सकता है. सो ह्यूमस एक्यूमुलेशन, दैट इज ह्यूमिफिकेशन, एंड ह्यूमस इज अ स्पेशल compound which is resistant to variety of the hydrolytic enzymes. Okay, last one is mineralization. So it is the release of inorganic nutrients due to the degradation of humus by some microorganisms. तो ह्यूमिफिकेशन हो जाने के बाद भले ही वो स्लोली ग्रेजुअली लेकिन डिग्रेड तो होता है, right? It is resisting, but some of the microorganisms are able to degrade slowly gradually this humus. So what happens after humus degradation? तो humus अगर degrade हो जाता है तो उसके बाद बाकी क्या बचेगा? That is inorganic nutrients. Okay, सो मिनरलाइजेशन. तो आप देखो पहले ऑर्गेनिजम्स थे या उनके बॉडी पार्ट्स थे, उनको फ्रेगमेंटाइज किया गया. फ्रेगमेंटाइज होने के साथ साथ लीचिंग भी हुआ. उसके साथ साथ उसमें जो भी मैक्रोमोलेक्यूल्स थे उनका कैटाबॉलिज्म हुआ. कैटाबॉलिज्म होके एक पाउडरी कंटेंट बना, डार्क ह्यूमस बना, राइट? और उस ह्यूमस का बाद में डिग्रेडेशन होने के बाद वो जो हुआ बना आपके सामने है, दैट इज मिनरलाइजेशन. मिनरल्स आर देयर. अब ये मिनरल्स वापस बायोजियोकेमिकल साइकिल के थ्रू एंटर हो सकते हैं टू द लिविंग वर्ल्ड. ओके, नाउ
diagrammatic representation of decomposition cycle in a terrestrial ecosystem. तो किसी terrestrial ecosystem में किस तरह से ये decomposition process होता है उसके बारे में आपको बताया। अब देखो एक living tree आपको यहाँ पे दिखाएगा, tree grows in the soil। अगर उस tree में से leaves during the autumn season ये fall down हो रहे हैं, ओके, तो ये green leaf falls to the ground, some part of the green leaf is going to be eaten up by some insects and some other animals as well, herbivores. Nutrients and energy enter into the food chain, food web। तो ये जो एरो दिखा है वहां से अगर किसी और ने इसको खाया है, मतलब कि किसी इंसेक्ट ने या किसी एनिमल ने, बेचारा हर्बीवर्स, अगर उन्होंने खाया है तो फिर यहाँ से ये एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स जो है वो फूड वेब और फूड चेन में चले जाएंगे। और अगर कोई डिग्रेड करने वाला इसको खा रहा है तो फिर क्या होगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ओके, एक तो इसका कंप्लीट सम न्यूट्रिएंट्स लीच इनटू सॉइल बाय केमिकल एक्शन। नेचुरल केमिकल प्रोसेस की वजह से उसमें से कुछ न्यूट्रिएंट्स क्या करेंगे, लीच आउट हो जाएंगे टू द ग्राउंड्स। ओके, तो ग्राउंड में जाने के बाद क्या होगा, ये सॉइल में ऑर्गेनिक रिचनेस बढ़ाने वाले हैं, राइट। एज वेल एज दूसरा क्या होगा, लीव्स partially consumed by decomposers such as fungi and bacteria. They begin to lose form and become litter. अब देखो ये क्या हो रहा है, तो कुछ पार्ट लीच आउट होके सॉइल में एंटर हो रहा है, कुछ न्यूट्रिएंट्स, और कुछ जो बाकी लीफ का जो पोर्शन है वो क्या हो रहा है, तो लीफ के उस पोर्शन को बैक्टीरिया, फंजाई, उसके जो एंजाइम्स हैं वो डिग्रेड कर रहे हैं, डीकम्पोज कर रहे हैं। ओके, ये हो जाने के बाद कुछ डीकम्पोजिशन बाकी रहता है, वो अर्थवर्म्स हैं, बैक्टीरिया है, ओके, सॉइल में जो माइट्स एंड फंजाई है वो भी उसको डिग्रेड करते हैं। तो कंप्लीट डिग्रेडेशन हो जाने के बाद ये आपकी जो सॉइल है, इट इज गोइंग टू बिकम रिच इन टर्म्स ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। अब ये जो सॉइल आपकी न्यूट्रिएंट रिच हो चुकी है तो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू सपोर्ट लाइफ। मतलब अगर आप उसमें कुछ सीड्स वगैरह सो कर रहे हैं और कंडीशंस फेवरेबल है तो अगेन इट कैन जर्मिनेट इनटू अ न्यू प्लांट एंड इट कैन ग्रो, और वही स्टोरी वापस उस दूसरे प्लांट के साथ कंटिन्यू होगी। तो एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में डीकम्पोजिशन का पाथवे ये रहने वाला है, ये फॉर्मेट रहने वाला है, राइट। सो इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। ओके, नाउ some of the factors which are influencing the process of decomposition. Fine. So there are some factors which are influencing the process of decomposition. ऐसे factors क्या क्या हो सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो एक तो है केमिकल कंपोजिशन ऑफ द डेट्रिटस। डेट्रिटस जो है मतलब डेड मटेरियल जो कुछ भी है उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है। ओके, अगर वो केमिकल कंपोजिशन उसका ऐसा है कि इट इज ऑर्गेनिक रिच एंड ऑल दिस, ओके, तो फिर उसमें से बहुत सारा न्यूट्रिएंट डीकम्पोजर्स को मिल सकता है। सो डीकम्पोजिशन इज स्लो इन डेट्रिटस, रिच इन लिग्निन एंड काइटिन। अगर आपके डेट्रिटस में लिग्निन और काइटिन है तो फिर डेट्रिटस का जो डीकम्पोजिशन करने की प्रोसेस है वो बहुत स्लो चलने वाली है। क्यों, तो लिग्निन और काइटिन जो है उनको डिग्रेड करना इतना इजी नहीं है। ऑब्वियसली यू रिक्वायर एंजाइम्स फॉर डिग्रेडिंग ऑल द कंपाउंड्स। तो अगर लिग्निन को डिग्रेड करना है तो आपको लिग्निनेज चाहिए, काइटिन को डिग्रेड करना है आपको काइटिनेज एंजाइम चाहिए। ये एंजाइम फंगस प्रोड्यूस करता है और कोई प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, लेकिन प्रोड्यूस करने के बाद भी उसको डिग्रेड करना भी इतना इजी नहीं है। ओके, सो दैट्स व्हाई अगर लिग्निन और काइटिन है अगर आपके डेट्रिटस में तो इट इज वेरी टफ टू डिकम्पोज। जैसे कि काइटिन कहाँ पे होगा, तो एक्सोस्केलेटन ऑफ द इंसेक्ट। लिग्निफाइड सेल वॉल, अगर लिग्निफाइड सेल वॉल मतलब ऐसा प्लांट सेल के जिसमें लिग्निन डेवलप हो चुका है, मतलब आप समझिए कि उसकी सेकेंडरी ग्रोथ हो चुकी है, तो फिर ऐसे प्लांट मटेरियल को भी डिग्रेड करना इतना इजी नहीं रहने वाला है। It is quicker if detritus is rich in nitrogen and water soluble substances like
शुगर्स। अगर डेट्रिटस में नाइट्रोजन रिच कंपाउंड्स हैं लाइक प्रोटीन्स, एमिनो एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, तो फिर डीकम्पोजिशन की जो पूरी प्रोसेस है वो फास्ट होगी। एज वेल एज अगर उसमें वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं, अच्छे से वाटर में मिक्स हो सकते हैं लाइक शुगर्स एंड ऑल दिस, तो फिर तब भी आपका जो डेट्रिटस डीकम्पोजिशन प्रोसेस है वो फास्ट होगा। दूसरे होते हैं क्लाइमेटिक फैक्टर्स, दैट इज टेम्परेचर एंड सॉइल मॉइस्चर। तो सॉइल मॉइस्चर और टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करते हैं? अगर वार्म एंड मॉइस्ट एनवायरमेंट है तो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू फेवर द डीकम्पोजिशन। क्यों? तो वार्मर एनवायरमेंट, आई एम नॉट सेइंग हॉट एनवायरमेंट्स, वार्मर एनवायरमेंट्स, ओके, तो क्या होगा, आपके एंजाइम्स जो हैं, माइक्रोबियल एंजाइम्स, वो बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं वार्मर टेम्परेचर्स नियर अबाउट 30, 35, 37 डिग्री सेल्सियस। तो उस टाइम पे ये अच्छे से परफॉर्म करेंगे, तो अच्छे से फास्ट डिग्रेडेशन भी कर सकते हैं। अगर एनवायरमेंट में मॉइस्चर कंटेंट है तो फिर मॉइस्चर मिक्स होने की वजह से हाइड्रोलेज एंजाइम की एक्टिविटी भी फास्ट हो सकती है, मतलब डिग्रेडेशन की एफिशिएंसी फास्ट हो सकती है अगर एनवायरमेंट में मॉइस्चर है तो इसीलिए वार्मर एंड मॉइस्चर वाले जो एनवायरमेंटल कंडीशंस है उसमें डीकम्पोजिशन को वो फेवर करने वाला है। लो टेम्परेचर एंड एनाएरोबायोसिस inhibits decomposition resulting in buildup of organic material। तो लो टेम्परेचर पे एंजाइम्स की एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाती है, इसलिए अच्छे से प्रोसेस नहीं होगी डीकम्पोजिशन की। दूसरा, एनारोबिक कंडीशन अगर है, ऑक्सीजन इन जनरल यू कैन से एयर, पर्टिकुलरली ऑक्सीजन अगर वहां पे नहीं है सिस्टम में तो अब भी डिग्रेडेशन स्पीड अप नहीं हो सकता है। इट इज गोइंग टू ऑब्वियसली इनहिबिट द डीकम्पोजिशन प्रोसेस। ओके, तो अगर डीकम्पोजिशन स्लो हो जाएगा तो जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है उसका कंपाइलेशन होता जाएगा। सो दीज आर सम फैक्टर्स व्हिच कैन इन्फ्लुएंस द प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन। और ये सभी पांचों जो पार्ट्स थे डीकम्पोजिशन के स्टेप्स, इन सभी के लिए ये दोनों ही केमिकल फैक्टर्स एंड क्लाइमेटिक फैक्टर्स दोनों ही उतने ही काम करते हैं। So dear students, this is all about decomposition. Now we are moving towards energy flow. The third, you can say, component of the ecosystem, energy flow. So we know that sun is the only source of energy for all ecosystems. चाहे फिर वो aquatic है, चाहे फिर वो terrestrial है, aquatic में भी बहुत सारे एक्वेटिक इकोसिस्टम है, लेकिन उसमें से डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम्स जो है उसके लिए सन इज नॉट बीइंग द सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि वहां तक सनलाइट पेनिट्रेट नहीं करती है। ऑफ द इंसिडेंट सोलर रेडिएशन लेस देन 50% इज कॉल्ड पार, दैट इज फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। तो जितना भी सोलर रेडिएशन अर्थ के सरफेस पे पहुंच रहा है, स्टेटमेंट को ठीक से समझिए, अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन विच इज रीचिंग टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, इंसिडेंट सोलर रेडिएशन उसको हम बोलते हैं, उसमें से भी 50%, लेस देन 50% इज एक्चुअली यूटिलाइजेबल बाय द प्लांट्स। और उस यूटिलाइजेबल को हम क्या बोल रहे हैं? इट इज फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। क्यों? उतना ही रेडिएशन ऐसा है सनलाइट का विच इज एक्चुअली हेल्पिंग इन द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। That's why you can say it is photosynthetically active radiation. Plants and photosynthetic and chemosynthetic bacteria, which are autotrophs, fix solar radiant energy to make their own food. तो जो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स है उसमें सभी प्लांट आ जाएंगे, एज वेल एज फोटोसिंथेटिक एंड केमो ऑटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो है, ओके, देखिए, दे कैन यूज द सोलर रेडिएशन फॉर देयर ग्रोथ एंड फूड मेकिंग। प्लांट्स कैप्चर ओनली 2 to 10% ऑफ द पावर। अब आप देखो इसमें कितना कम हो रहा है,
अगर सोलर रेडिएशन जितना भी है उसमें से अर्थ के सरफेस पे जब पहुंच रहा है उसको हम 100% भी कंसीडर कर लें, तो आउट ऑफ दैट 100% अगर हम काउंट करते हैं तो 50% मैक्सिमम, लेस देन 50% बोला है तो फिर हम ऐसा बोल सकते हैं मैक्सिमम 50% जो है वो पार है, और उस पार में से भी प्लांट कैन कैप्चर ओनली 2 to 10% ऑफ द पार। ओके, तो 50% है उसका 2% आपको निकालना है। ओके, 50% मतलब क्योंकि 100% का 50% हो गया, मतलब आपका 50% जो है वो अब आपके लिए प्लांट के लिए 100% के जैसे काम कर रहा है। मतलब प्लांट कैन यूटिलाइज फ्रॉम दोज 50% विच इज एक्चुअली यूटिलाइजेबल एज पार, उसका भी 2% से लेके 10% तक ही प्लांट्स यूज करते हैं। ओके, तो 2% मतलब आप बोल सकते हैं ओवरऑल जो है पार, उसमें से 4 ओवरऑल पार जो है उसमें से 4% से लेके ओवरऑल पार में से मैं बात कर रहा हूं 20% तक। ओके, इतना सिर्फ प्लांट सिर्फ यूज कर सकते हैं। दिस एनर्जी सस्टेन्स द एंटायर लिविंग वर्ल्ड। आप देखो सोलर रेडिएशन में से जितना भी, अब 100% सोलर रेडिएशन भी नहीं है, 100% सोलर रेडिएशन में भी जितना इंसिडेंट सोलर रेडिएशन है टू द अर्थ, उसका भी 50% ही इट इज पार विच इज फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, जो फोटोसिंथेसिस में काम आ सकता है। और उसमें से भी आउट ऑफ दैट 50% अगेन ओनली 2 to 10% इज यूटिलाइजेबल बाय द प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस। और हमें पता है कि प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स ऑफ ऑल द इकोसिस्टम्स। तो आप समझ सकते हैं कि ओवरऑल सनलाइट जो हमारे अर्थ तक पहुंच रही है उसका सिर्फ 1 से लेके 5% ओवरऑल सनलाइट को, क्योंकि इसको अगर आप 100% की रेंज पे लेके जाओगे तो only 1 to 5% of the overall sunlight which is reaching to our earth, it is maintaining and sustaining entire living world। आगे कहाँ पे, चैप्टर नंबर 1 11 स्टैंडर्ड द लिविंग वर्ल्ड। उस एंटायर लिविंग वर्ल्ड को कौन सस्टेन कर रहा है, आप देखो उसमें भी चैप्टर नंबर 1 में ये नंबर भी था 1.7 मिलियन स्पीसीज हैव बीन आइडेंटिफाइड। तो ये 1.7 मिलियन स्पीसीज को कौन सस्टेन कर रहा है, ओनली 1 to 5% ऑफ द टोटल सनलाइट रीचिंग टू द अर्थ। Ecosystems obey second law of thermodynamics. They need a constant supply of energy to synthesize the molecules. It helps to counteract the entropy. Okay, तो इकोसिस्टम कौन से रूल पे काम कर रहे हैं, तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे काम कर रहे हैं। ओके, तो एंट्रोपी के रिलेटेड है, एंट्रोपी दैट इज रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम, राइट। और ये हम बोलते हैं सेकंड लॉ में कि एंट्रोपी ऑफ ऑल द सिस्टम दैट इज रैंडमनेस ऑफ ऑल द सिस्टम इज गोइंग टू इंक्रीज, ओके, इन वन डायरेक्शन। तो रैंडमनेस बढ़ती है हर एक सिस्टम की, तो इट नीड्स कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी टू सिंथेसाइज द मॉलिक्यूल्स। ओके, तो सभी इकोसिस्टम को कांस्टेंट सप्लाई चाहिए एनर्जी का टू सिंथेसाइज न्यू एंड न्यू मॉलिक्यूल्स। और ये कांस्टेंट सप्लाई कौन प्रोवाइड कर रहा है, अर्थ, दैट इज फ्रॉम सन ऑन द अर्थ टू सस्टेन ऑल द इकोसिस्टम्स। ये कांस्टेंट सप्लाई कौन प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज सन। एंड इट हेल्प्स टू काउंटरैक्ट द एनर्जी एंट्रोपी। अगर ये कांस्टेंट एनर्जी सप्लाई नहीं मिलता तो फिर ये एंट्रोपी, या तो आप बोल सकते हैं रैंडमनेस ऑफ दिस इकोसिस्टम। थर्मोडायनामिक्स के लॉ किसके ऊपर डिपेंडेंट है, किसके ऊपर गवर्न हो रहा है, तो सिस्टम्स के ऊपर। तो इकोसिस्टम इज आल्सो अ काइंड ऑफ द क्लोज सिस्टम, राइट। तो फिर अगर कांस्टेंट एनर्जी सप्लाई नहीं मिला तो फिर एंट्रोपी इंक्रीज होगी, रैंडमनेस बढ़ेगी। रैंडमनेस अगर इकोसिस्टम की बढ़ेगी तो फिर वो सिस्टम ज्यादा देर तक सस्टेन नहीं हो सकती, एंड दैट्स व्हाई इट रिक्वायर कांस्टेंट सप्लाई ऑफ द एनर्जी, और वो प्रोवाइड करता है सन।
सी बहुत सिंपल से टॉपिक्स आप स्टडी कर रहे हैं, लेकिन शायद डिस्कशन जो है वो थोड़ा डिटेलिंग हो रहा है देन योर प्रीवियस स्टैंडर्ड्स, ओके, 9th and 10th। सो एनर्जी फ्लो में जिनका रोल है ऐसे ऑर्गेनिजम्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो फिर द फर्स्ट वन इज प्रोड्यूसर्स, जिसको हम ऑटोट्रॉप्स भी बोलते हैं। सो ऑटोट्रॉप्स आर द ऑर्गेनिजम्स दैट सिंथेसाइज फूड in a terrestrial ecosystem. Major producers are herbaceous and woody plants। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जितने भी है वहां पे herbaceous और जो woody plants है, they are the major producers। अब ये स्टेटमेंट ऐसा है कि जिसके लिए हम डिस्कशन करना अभी ठीक नहीं है, ये बहुत कॉमन चीज है जो हम सभी को बहुत अच्छे से डिटेलिंग इसका पता है। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स इन एन एक्वेटिक इकोसिस्टम आर फाइटोप्लैंक्टन्स, algae and higher plants। Okay, the energy trapped by the producer is passed on to a consumer or the organism dies। अब ये स्टेटमेंट भी बहुत बार रिपीट हो चुका है हमारे लिए। अगर एनर्जी जो ट्रैप हो रही है बाय द प्रोड्यूसर, मतलब प्लांट के थ्रू, किसकी एनर्जी? सनलाइट। सो द ट्रैप्ड बाय प्रोड्यूसर इज पास्ड ऑन टू द कंज्यूमर। कौन कंज्यूमर? कौन होगा? हर्बीवर्स, हर्बीवर्स से कार्निवर्स एंड ऑल। अगर वो यूटिलाइज नहीं हुई ये एनर्जी विच इज एक्चुअली प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोड्यूसर, ओके, तो अल्टीमेटली ऑर्गेनिज्म इज गोइंग टू डाई। और फिर अगर उसकी डेथ हो रही है तो फिर यहाँ से क्या शुरू होगा? डीकम्पोजिशन, दैट इज डेट्रिटस। ओके, तो दो ही रास्ते हो सकते हैं, या तो फूड चेन में जा सकता है या तो डीकम्पोजिशन के पाथवे में जा सकता है। A simple food chain you can observe, this is the producer which is grass, sunlight और water को use करके, nutrients को soil में से use करके ये अपना food बना रहा है। इस food को consume कर रहा है primary consumer, that is grasshopper। in this grassland ecosystem की हम बात करते हैं तो उसमें food chain ऐसे हो सकती है। उस grasshopper को कौन खा सकता है? तो frog is being carnivore और वो secondary consumer कहलाएगा। फ्रॉग को स्नेक खा सकता है तो वो भी टर्शरी कंज्यूमर है और वो सेकेंडरी कार्निवर कहलाएगा। आप देखो, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, लेकिन अगर इन दोनों को देखे फ्रॉग और स्नेक को तो फिर ये कार्निवर भी है। तो फिर इनका लेबलिंग इस तरह से होना चाहिए, कार्निवर 1 दैट इज फ्रॉग, कार्निवर 2 दैट इज स्नेक। स्नेक को हॉक खा सकता है, दैट इज फाइनल कंज्यूमर। यहाँ पे फोर्थ फिफ्थ नहीं होगा, इसका रीजन भी आगे आएगा ऐसा क्यों है। तो फाइनल कंज्यूमर दैट इज कार्निवर 3। और फिर जब ये, वैसे तो यहाँ पे हॉक के बाद डायरेक्ट डीकम्पोजिशन पता है, लेकिन डीकम्पोजिशन सभी जगह से हो सकता है। इस प्रोड्यूसर की भी डेड बॉडी हो सकती है, ग्रास होपर की भी हो सकती है, फ्रॉग, स्नेक एंड हॉक। तो इन सभी के डेड बॉडीज जितने भी होंगे उन सभी को कौन डिग्रेड करेगा? डीकम्पोजर्स। वो 5 स्टेप प्रोसेस, ओके, डीकम्पोजर्स आर गोइंग टू डू दिस, राइट। तो प्रोड्यूसर के बाद जो सेकंड है, दोज आर द कंज्यूमर्स विच आर हेट्रोट्रॉप्स। सो दीज आर द एनिमल्स that directly or indirectly depend on plants for their food। डायरेक्ट अगर वो हर्बीवर्स हैं तो फिर डायरेक्ट डिपेंडेंसी, अगर वो हर्बीवर्स नहीं है, कार्निवर है, तो इनडायरेक्ट डिपेंडेंट तो प्लांट के ऊपर ही है। दे इंक्लूड प्राइमरी कंज्यूमर दैट इज हर्बीवर्स, they directly feed on plants, for example insects, birds, mammals, mollusks, etc। फिर आते हैं secondary consumers which are primary carnivores, they feed on herbivores, for example frog, fox, man, etc। फिर tertiary consumers, तो उसमें आएंगे secondary carnivores, okay, तो feed on primary carnivores, फॉर एग्जाम्पल टाइगर, लायन एटसेट्रा, ये उसके एग्जाम्पल्स हैं। द चेन ऑफ फीडिंग रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड अ फूड चेन। ओके, ये हमने 10th में कंसेप्ट पढ़ा हुआ है। ओके, फीडिंग रिलेशनशिप, प्रे, ये एक्चुअली है प्रे प्रेडेटर रिलेशनशिप। तो ऐसे फूड चेन के 2 टाइप हो सकते हैं। ओके, there are 2 types of the food chain,
So there are two types of the food chain as we know, और इसके बारे में शायद आपने 10th में भी डिस्कशन पढ़ा है. So ये कौन कौन से फूड चेन के टाइप्स हैं? एक होता है ग्रेजिंग फूड चेन, जिसके लिए हम एब्रिविएटेड वर्ड यूज करते हैं GFC, और दूसरा होता है डेट्रिटस फूड चेन. तो ग्रेजिंग और डेट्रिटस फूड चेन ये दोनों ही इकोसिस्टम में काम करते हैं, एक साथ काम करते हैं. स्टार्टिंग पॉइंट जो है उसके हिसाब से ग्रेजिंग या डेट्रिटस, इस तरह से उसका हम नोमेनक्लेचर करते हैं. ओके, ग्रेजिंग, ग्रेजर्स ये हमें पता है, हर्बीवर्स जो है वहां से अगर इसकी शुरुआत होती है, मतलब फ्रॉम ग्रास एंड हर्ब्स एंड ऑल दिस, वहां से अगर कोई हर्बीवर उसको खा रहा है और वहां से फूड, इस फूड चेन की शुरुआत हो रही, तो दैट इज ग्रेजिंग फूड चेन. और अगर डेड मटेरियल से इस फूड चेन की स्टार्टिंग पॉइंट है, देन इट इज कॉल्ड डेट्रिटस फूड चेन. डेट्रिटस का मतलब अब हम सभी को पता है अच्छे से, और उसके लिए भी हम एब्रीविएटेड वर्ड एक यूज करते हैं, दैट इज DFC. ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही. In the next lecture, we will be discussing in detail about both of this kind of the food chains, grazing and detritus food chain. Till then, आपको क्या करना है, एनर्जी फ्लो के कंसेप्ट थोड़े ब्रश अप करिए, 10th स्टैंडर्ड के जो है वो, और फूड चेन, फूड वेब का जो कंसेप्ट है उसको भी आप थोड़ा ब्रश अप करिए. यहाँ से बहुत बार नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं फूड चेन में से. ओके, तो अच्छे से इसको प्रिपेयर करिए, और अभी से इसके रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं उसको आप आपके प्रैक्टिस बुक्स जो भी है उसमें से सॉल्व करना शुरू कर दीजिए. ओके, तो आपके कंसेप्ट जो है वो इस चैप्टर में, ऐसे चैप्टर्स में साथ में ही कंसेप्ट क्लियर करते रहना है. तो ऐसे चैप्टर को बार बार नहीं पढ़ना है, ये हमारा टारगेट होना चाहिए. ओके, सो अच्छे से इसको प्रिपेयर करिए. फाइन, सो हैव अ नाइस डे. और अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, please call me. You can message me anytime. Fine. Once again, have a nice day. Stay safe.